who are professional courses have immense potential to develop and grow. This is the most dynamic generation who is not only a job seeker, but an innovator, and this gives them scope of generating lots of opportunity adding in the economy. At Oriental, we focus on innovation and experimenting. I am proud to bring in a topic as entrepreneurship opportunities for young minds, which will open the mind barriers of Generation Z and will create some impact on new ways of careers transformation. I would appreciate Mr. Aman Porwal for taking such a topic today. Now, I would like Neha Sharma to take it further. Over to Neha. Thank you so much, ma'am, for your great welcome speech. Okay, now I would like to felicitate Mr. Aman Porwal. Mr. Aman Porwal has completed his software engineer degree from Acropolis Institute of Technology and Research, Indore, in the year 2020. He is the founder and CEO of Momscart, and he is invited to Dubai Expo in 2020 that was commenced on March 2022 by Government of Institute. He has won G Summit from IIT Kharagpur in 2021 and many more. And he had reached into the PI round of Shark Tank India 2021. Mr. Aman Porwal is a young entrepreneur, and he has given so many work to the young women and other housewives as well. So now I would like to request Mr. Aman Porwal, kindly proceed further and just interact with the students and give your expertise on this particular topic, entrepreneurship opportunities for young minds. Thank you so much, Aman. Kindly please take it further. Hi Neha ma'am. Thank you so much. Thank you so much, Oriental University, for inviting me as a guest speaker here. Hello everyone present in this session. Thanks for joining for this session. So let me quickly start with my introduction that I am Aman Porwal, founder and CEO of Momscart. I won't take much time in introduction. Let's move on the main topic. My startup Momscart is based in Indore, Madhya Pradesh. We are working towards women entrepreneurship. Using our mobile application, women entrepreneurs can digitalize their business and take it globally. We have been recently nominated for Hindustan Times 30 Under 30 and working towards betterment of country and the vision of Atmanirbhar Bharat. So let's start with an introduction, entrepreneurship and young minds. So what's basically the entrepreneurship word is? Entrepreneurship हम किसे कहते हैं? I will talk in Hindi, English. It would be more convenience. And right. So what is entrepreneurship? Entrepreneurship किसे कहते हैं? Can anyone, any of the student or any of the faculty have any thoughts before it? आजकल बहुत buzz बना हुआ है entrepreneurship का, startups का, चारों तरफ हम देख रहे हैं कि although everyone is talking about startups, सब हर कोई startup की बात कर रहा है. Shark Tank India के बाद से entrepreneurship की एक लहर जो है आजकल इंडिया में चल रही है. काफी buzz बना हुआ है, काफी cool सबको लगता है कि हम भी entrepreneur बनेंगे, हम भी entrepreneurship start करेंगे. But before moving into it, can we know the basic definition? भैया entrepreneurship होता क्या है? किस चिड़िया का नाम है entrepreneurship? Can anyone from the audience can drop a message on chat box और जिसको एक लाइन का कोई define कर सकता है? What is entrepreneurship? The most interactive student, let me give you some benefits of joining this session. The most interactive students will get an internship offer from Momscart and also some vouchers of where you can shop at Momscart. At Momscart Marketplace, you find thousands of products handmade with mompreneurs of India from 30 plus states across India. Yeah. Hi Anshita, hi Sudhanshu, and many other. Hello sir. Yeah. Hi Anshita, how are you? क्या पता है आपको entrepreneurship के बारे में? Actually, sir, the way we are studying about entrepreneurship, it's about the things which we are going to encourage ourselves. And it's being about new creating ideas, innovations which we are having in our business development. So it's about like that type. That's what I heard about. And you can say the Anshita, Anshita, you are going somewhat correct. Let me get you more correctly what exactly entrepreneurship is. Entrepreneurship is a mindset that makes you
stand differently, that makes you think differently, apart from your mentality, which is a general idea, right? Entrepreneurship, we can say, is the thought process जो कि आपको एक थोड़ा सा अलग सोचने पे लाती है. When you think as an entrepreneur, entrepreneurship is basically solving a problem directly for which is being faced by you or your near and dear ones. Entrepreneurship की सिंपल सी डेफिनेशन बोले तो entrepreneurship एक ऐसा माइंडसेट है जो कि हमें किसी भी प्रॉब्लम का आसान से आसान सॉल्यूशन लाने में हेल्प आउट करता है, और उस सॉल्यूशन को हम किस तरीके से मोनेटाइज कर सकते हैं, किस तरीके से हर किसी तक वो पहुंचा सकते हैं. दिस थॉट प्रोसेस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप. जॉब, अब अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं तो हम ये लेके चलते हैं कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप में होता क्या है, हम एग्जैक्टली एंटरप्रेन्योरशिप में करते क्या है, राइट? सो एंटरप्रेन्योरशिप सीधी सी एक बहुत आसान से तरीके से स्टार्ट होता है, जो कि होता है एक आइडिया जो कि आपका हो सकता है, किसी और का हो सकता है. आइडियाज जो होते हैं दे आर द थॉट प्रोसेस, जो थॉट्स कॉन्वर्सेशन से सामने आते हैं. अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और आपको रास्ते में ऐसी कोई प्रॉब्लम दिखती है जो कि हर दिन हजारों लाखों लोग ट्रैवल करते हैं उनको फेस होती है, तो आप उस आइडिया पे काम कर सकते हो. सबसे पहले स्टार्ट होता है आइडिया के बाद जो होती है चीज, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है टू मूविंग टुवर्ड्स एन एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, दैट कम्स इज रिसर्च एंड प्लान. आप कैसे उस चीज को प्लान करते हो, हाउ यू प्लान टू टेक योर आइडिया टुवर्ड्स अ प्रोडक्ट. आइडिया से प्रोडक्ट के बीच में एक गैप होती है, एक जर्नी होती है जिसको हमें ट्रैवल करना होती है. आइडिया आने के बाद वी हैव टू वर्क ऑन हाउ वी कैन एग्जीक्यूट दैट आइडिया. आइडियाज आर प्लेंटी इन द मार्केट. इंडिया इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज. हम आज भी देखते हैं कि आफ्टर 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया में काफी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक डेवलप नहीं हुई है, काफी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो काफी पीछे हैं. अगर हम डेवलप कंट्रीज की बात करें तो वहां पे अगर हेल्थ केयर आप ले लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लो, मैनेजमेंट में देख लो, काफी सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो इंडिया में, जहाँ पे काफी डेवलपमेंट अभी आना बाकी है. हम अगर स्टार्टअप इंडस्ट्री देखें तो स्टार्टअप इंडस्ट्री इंडिया में बढ़ तो रही है, काफी एक्सपोनेंशियल बढ़ रही है, बट काफी ऐसी हम वी कैन से काफी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे अभी स्टार्टअप में काफी रिवॉल्यूशंस आना बाकी है. देन कमिंग टू द पॉइंट, जब हम एक आइडिया ले आते हैं, हम आइडिया पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं, आइडिया को हम एग्जीक्यूशन में लेके आते हैं, हम प्लान रेडी करते हैं, उसके बाद क्या, हाउ टू मूव अहेड. हम फंडिंग की बात करते हैं कि भाई फंडिंग क्या होती है. आजकल हमने चारों तरफ देखा है, हर दिन न्यूज में आता है कि इस स्टार्टअप ने इतने मिलियन रेस करे, इस स्टार्टअप ने इतनी मिलियंस की फंडिंग उठाई है. सो वी ऑल गॉट एक्साइटेड कि भाई इतना पैसा आता कहां से है. Does something millions of dollars exist? क्या 1000 करोड़ इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं. अगर आप स्टार्टअप इंडस्ट्री की बात करो या आप ऐसे बिजनेस की बात करो, जब आप बिजनेस माइंडसेट से सोचो तो यस इट एग्जिस्ट, राइट. आइडियाज होते हैं, इस आइडियाज काफी होते हैं. व्हाट यू नीड इज एग्जीक्यूशन, हाउ यू थिंक अबाउट एग्जीक्यूशन. जॉब और बिजनेस में दैट्स व्हाट मेक्स योर डिफरेंस. जॉब में जो आपकी ग्रोथ होती है, इट कम्स टू लाइफ, हर साल में एक बार होती है ग्रोथ. लेकिन जब आप बिजनेस की बात करो, जब स्टार्टअप की बात करो, तो एवरी डे यू कम्स अप द ग्रोथ. हर दिन आप स्टार्टअप में ग्रो करते हो, हर दिन आप एक स्टेप आगे बढ़ते हो. मैं आपकी बताऊं, जब मैं भी आप ही लोगों में से बीच में से हूँ. मैंने भी कुछ सालों पहले तक मैं भी अपने कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग कर रहा था, और मैंने अपने फर्स्ट स्टार्टअप की इनिशिएटिव जो था अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ले लिया था. बिकॉज जब IIT JEE के बाद, IIT JEE में जब नहीं हुआ, मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, और वो भी इसीलिए लिया था कि मुझे एक्रोपोलिस कॉलेज में काफी अच्छे प्लेसमेंट्स होते थे और मैंने काफी नाम सुना था कॉलेज का, तो मैंने वहां पे प्लेसमेंट्स के लिए एडमिशन ले लिया. लेकिन जब मैं कॉलेज में गया, जब मैंने ECL में इंटरेक्शन हुआ, जब मैंने पहली बार एंटरप्रेन्योरशिप की बात सुनी कि व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप मेक्स योर डिफरेंस. अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप परस्यू करते हैं, अगर हम स्टार्टअप जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो सिर्फ पैसा कमाने के अलावा हम क्या कर सकते हैं. व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ब्रिंग द चेंज इन द सोसाइटी. जब आप स्टार्टअप की बात करते हो तब आप एक इम्पैक्ट की बात करते हो, किस तरीके से आप सोसाइटी में चेंज ला सकते हो, किस तरीके से लोगों की लाइफ आप चेंज कर सकते हो. जब आप जॉब की बात करते हो, जब आप बहुत ही सिंपल तरीके से सोचते हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो. सो दैट्स व्हाट जॉब एंड एंटरप्रेन्योरशिप मेक्स अ डिफरेंस. सो लेट्स मेक अ क्विक इंटरेक्शन विद एवरी वन ऑफ यू. एक सिंगल लेटर वर्ड बताना है सभी को, जिसको जो भी सबसे पहले आंसर देगा, आई गेट यू सम वाउचर फ्रॉम मॉम्स कार्ड.
एक सिंगल लेटर वर्ड बताइए जो कि सबसे ज्यादा स्टूपिड साउंड करता है। ऐसा कोई लेटर बताइए, ऐसा कोई वर्ड बताइए जो जिसमें केवल एक ही लेटर होता है और बहुत स्टूपिडिटी वो साउंड करता है। कैन एनीवन गेस? एक लेटर का वर्ड बताइए। 26 लेटर होते हैं जिसमें से ऐसा कोई एक लेटर का वर्ड जो कि काफी स्टूपिड साउंड करता है, जो काफी मीन होता है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचना होता है, काफी सेल्फिश होता है। ऐसा कोई वर्ड। नेहा मैम आप बता सकते हो, आप स्माइल कर रहे हो, मेरे को लगता है आपको आंसर आ चुका है। आई। बहुत ही बढ़िया मैम, परफेक्ट परफेक्ट। सो आई जो होता है काफी सेल्फिश होता है। जब सिर्फ केवल हम अपने बारे में सोचते हैं ना, तब काफी चीजें नैरो डाउन हो जाती है, काफी चीजें छोटी हो जाती है। बट वहीं जब एक इसके हम अपोजिट सोचते हैं, जब हम वी की बात करते हैं, जब वी टॉक अबाउट वी ऑल टुगेदर, तब हम काफी बड़ी विजन के बारे में बात करते हैं। विजन जो भी होता है, जब इट्स ऑल अबाउट वी, हाउ वी कैन ब्रिंग द चेंज, हाउ वी कैन डेवलप, हाउ वी कैन टेक एन इम्पैक्ट इन द सोसाइटी। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं IIM इंदौर में प्रेजेंटेशन दे रहा था, आफ्टर माय प्रेजेंटेशन डॉक्टर हिमांशु राय जो IIM इंदौर के अभी करंट सर्विंग डायरेक्टर हैं, उनसे जब मेरा 1-on-1 इंटरेक्शन हुआ था, तो सर ने मुझसे पूछा कि अमन कैन यू बिल्ड दिस स्टार्टअप? मैंने बोला यस सर आई कैन बिल्ड दिस स्टार्टअप। ही सेड कैन यू? मैंने बोला, फिर से बोला मैंने, सर यस आई कैन। मुझे लगा कि सर मेरे से वापस बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं, मैंने क्या गलत बोला? मैंने बोला यस सर आई कैन। Aman, so what he said is, Aman, I have the confidence कि you can, but जो आपने एक लाइन बोली ना, I can, इसको आप I can से लेके we can बना दो। Yes, we can build the startup। या जब भी आप बात करते हो कि आपको कुछ बड़ा करना होता है ना, you have to take a टीम स्पिरिट में आना होता है। We are always said कि जब भी हम साथ में मिल के काम करते हैं, जब भी हम वी की बात करते हैं, तब इट्स कम टुवर्ड्स पावर। जब हम एक्शंस में लाने की बात करते हैं, जब हम चीजें की ऐसे, जब हम उस डायरेक्शन में सोचते हैं जहां हमें लाइफ में कुछ बड़ा करना होता है ना, तब हमें टीम वर्क की जरूरत होती है। तो इट्स ऑलवेज सेड वी कैन। जब जॉब में होते हैं ना, जब इट्स ऑल अबाउट आई, मेरा प्रॉफिट, मेरी इनकम, मेरी सैलरी, मेरी जॉब। एंड जब आप स्टार्टअप की बात करते हो ना, तो जब स्टार्टअप में यू टॉक अबाउट पीपल। हम ऐसा हमने बचपन से सुनते हुए आए कि जब हम खुद के बारे में, जब हम दुनिया के बारे में सोचने लगते हैं ना, जब हम सबके लिए प्रे करते हैं, तो भगवान से हमें हमारे लिए प्रे करने की जरूरत नहीं होती है, राइट? सो दिस इज व्हाट आई एंड वी में डिफरेंस होता है। दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन अ जॉब माइंडसेट एंड एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट। जब आप जॉब माइंडसेट के लिए काम करते हो ना, जब आपको केवल लीनियरली सोचना पड़ता है, सीधा सीधा सोचना पड़ता है, जैसे ऊपर से ऑर्डर्स आए वही आपको फॉलो करना होता है। नेहा मैम को ऊपर से ऑर्डर आया कि आपको सेमिनार कंडक्ट कराना है, उन्होंने फॉलो अप लेके मुझे इन्वाइट कर लिया। बट जब आप एक एंटरप्रेन्योरशिप की माइंडसेट सोचते हो ना, आप जब जॉब की माइंडसेट में होते हो, आप ज्यादा आपका दिमाग नहीं लगा सकते हो। आपको जो ऑर्डर्स मिले वो आपको फॉलो करना होता है। अगर आप आपका खुद का दिमाग चलाने लगते हो ना, तो सबसे पहले आपकी कंपनी आपको बाहर करती है, बिकॉज दे डोंट वांट यू टू बी एन एंटरप्रेन्योर। अगर आप एंटरप्रेन्योरल माइंड से सोचने लगोगे ना, तो आप खुद का प्रोडक्ट के बारे में सोचोगे कि मैं एक अपना प्रोडक्ट बना सकता हूँ जिसकी लाइफ चेंज हो सकती है। जब आप एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के बारे में सोचते हो, तब आपको अप्स एंड डाउन्स के बारे में सोचना पड़ता है। जब आप एंटरप्रेन्योरशिप माइंड के बारे में सोचते हो, जब आपको यू थिंक अबाउट हाउ यू कैन मेक अ डिफरेंस, मेक अ सोसाइटी, अप्स एंड डाउन्स, एंड कैसे आप जुगाड़ की बात कर सकते हो। जब आप एक जुगाड़ शब्द जो होता है ना, हमारी सबकी लाइफ से फेमिलियर होता है, बट हम काफी लोग जो होते हैं उसको अपना नहीं पाते, बिकॉज वी आर शाय इनफ। हम शर्मा जाते हैं, हमें शर्म आ जाती है। अगर आपको शर्म आती है ना, तो एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस के लिए आप नहीं बने हो। आपको बेचना आना चाहिए। एवरीथिंग इज सेल्स। अगर आपको बेचना आ गया ना, तो आप कोई से बिजनेस खड़ा कर सकते हो। आप अगर जॉब इंटरव्यू भी दे रहे हो, इट्स ऑल्सो सेल। आप अपने आप को बेच रहे हो। जो हायरिंग कंपनी है, जो इंटरव्यूअर है, आप उसको अपने आप को सेल कर रहे हो कि व्हाई यू आर अ डिफरेंट। आप दूसरे लोगों से डिफरेंट क्यों हो, कंपनी आपको क्यों हायर करे। एवरीथिंग इज सेल्स। अगर आप किसी को अप्रोच कर रहे हो, आप किसी को, आपके फैकल्टी को कन्विंस कर रहे हो, आप एग्जाम लिख रहे हो, तो एग्जाम में भी आप अपने आप को बेच रहे हो कि आपका आंसर बेटर क्यों है। व्हाई शुड इंटरव्यूअर और व्हाई शुड द चेकर और एग्जामिनर पास यू, राइट? सो इट्स ऑल अबाउट सेल्स। एक जो मैंने आपको जुगाड़ की बात बोली ना, अगर आप स्टार्टअप इंडस्ट्री में हो, तो आपको जुगाड़ चीज काफी होना चाहिए, क्योंकि जब आप जॉब में होते हो ना, तब आपको इतनी चीजें सोचना नहीं पड़ती है कि सेल्स का क्या होगा, मार्केटिंग का क्या होगा, फाइनेंस का क्या होगा। आप जब स्टार्टअप में होते हो ना, आपको हर डोमेन में काम करना होता है। आप जब इनिशियल डेज में स्टार्टअप बिल्ड कर रहे होते हो, तब आपको आपकी कंपनी का CEO से लेके
टेलीकॉलर से लेके अकाउंटेंट, मार्केटर, सेल्स गाय, आपको हर चीज का नॉलेज लाना पड़ता है, हर चीज आपको सीखना पड़ती है. सो दैट्स व्हाट स्टार्टअप बिल्ड्स यू. वर्किंग इन अ जॉब, अगर 1 साल आप किसी जॉब में आप काम करते हो तो हाउ मच एक्सपीरियंस यू गेट? 1 साल का, राइट? बट जब आप स्टार्टअप में काम करते हो तो देन यू गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन अ ईयर, क्योंकि स्टार्टअप आपको काफी चीजें सिखा देता है. हम वो कहते हैं ना, बचपन से हम सुनते हैं ठोकर खा के ठाकुर बनते हैं. तो एवरीथिंग एवरी डे स्टार्टअप इंडस्ट्री में आपको एक ठोकर लगती है एंड वो आपको कुछ सिखा जाती है. द बेस्ट टीचर इन दिस वर्ल्ड इज आर फेलियर्स, आर फॉल्ट्स. हम जो हमारी जो गलतियां हमें सिखा सकती है ना, वो कोई भी नहीं सिखा सकता. जब हम बात करते हैं सीखने की, तो हम लेट्स सी कि हम कहाँ सीख सकते हैं. अगर हमने 3 इडियट्स मूवी देखी है तो वहां पे रेंचो बोलता है कि भाई चारों तरफ ज्ञान मिल रहा है, जहां से मिल रहा है बटोर लो. अगर हम लाइफ में जब तक सीखते रहते हैं ना, तब तक हम आगे बढ़ते रहते हैं. हम जितना सीखेंगे ना, हम आगे बढ़ते जाएंगे. आप कहीं से भी सीख सकते हो. आप अभी जितने लोग इस सेशन में बैठे बैठे इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल कर रहे हैं कैमरा ऑफ करके, वहां से भी आप सीख सकते हो. इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द इन्फ्लुएंसर, आप इफ यू फॉलो ऐसे गाय को आप अगर फॉलो करते हो, अगर वो राज शमानी हो, अंकुर वारिको हो, ऐसे काफी सारे सोशल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो कि आपको कुछ ना कुछ चीजें सिखाते हैं, राइट? आप इंस्टाग्राम से सीख सकते हो. यूट्यूब इज द वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री जहां से आप सीख सकते हो. अगर आप एक रूल बना लो कि हर दिन या हर वीकेंड आपको नेटफ्लिक्स से पहले एक टेडेक्स की वीडियो देखना है या फिर एक पॉडकास्ट सुनना है, तो दैट विल मेक यू डिफरेंट. आपको थोड़ा सोचने में डिफरेंट लाती है. अगर आप एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट अगर अपनी जॉब लाइफ में आप हो, सो अगर आप अपनी एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट को जॉब लाइफ में लगाओगे तो आप थोड़े से आगे बढ़ जाओगे. जितने लोग हैं, जितने कलीग्स हैं ना आपके, आप उनसे थोड़े से एक स्टेप आगे हो जाओगे. भाई रातों रात अमीर बनने का ये कोई फॉर्मूला नहीं होता है. जो भी होता है मिथ होता है. देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस. आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना होता है. आज हम जिसको भी देखते हैं, अगर किसी के बारे में आर्टिकल पब्लिश होता है, हम अगर उसका कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, किसी भी एंटरप्रेन्योर को देखते हैं, आज अगर आप मुझे भी देख रहे हो तो यू आर ऑलवेज सीइंग मी सिटिंग ऑन स्टेज. यू डोंट सी कि व्हाट आर द स्टेयर्स, हाउ आई ट्रेवल्ड. लाइक हम ये देखते हैं कि भाई कोई भी व्यक्ति है, वो आज जहां बैठा है उसको वहां देखते हैं, उसको उस स्टेज पे देखते हैं, राइट? वो कौन से रास्तों से निकल के आया है, कौन से स्टेयर से गुजरा है. वी डोंट सी दैट, राइट? एंटरप्रेन्योरशिप में वी हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस. एवरी डे देयर इज अ न्यू चैलेंज, देयर इज अ न्यू प्रॉब्लम. हमें हर दिन एक नई प्रॉब्लम का सामना करना होता है. वी हैव टू फाइट द प्रॉब्लम्स एंड मूव अहेड स्टेप बाय स्टेप. सो हमारे पास जो 2 साल होते हैं ना आपके पास, जो आप एमबीए कर रहे हो, एमबीए में आपके पास 2 साल के 365 720 अपॉर्चुनिटीज आपके पास होती हैं. एंड आप इस 720 हर दिन 720 दिन में आप हर दिन एक नया आइडिया पे काम कर सकते हो, सोच सकते हो. अगर आप बिफोर सिटिंग इनटू योर प्लेसमेंट्स इन योर कॉलेज, अगर आप एमबीए खत्म करने से पहले अगर किसी स्टार्टअप आइडिया पे काम करते हो, उसको बिल्ड करते हो और अपने जॉब इंटरव्यू अपने इंटरव्यूअर को बताते हो कि 2 साल में मैंने केवल थ्योरेटिकल नॉलेज के अलावा एक्शन किया है, मैंने एग्जीक्यूशन किया है इस आइडिया का, मैंने जो थ्योरीज पढ़ी उनको मैंने प्रैक्टिकली अप्लाई किया है, सो योर इंटरव्यूअर विल ऑलमोस्ट गेट यू फिल्टर्ड आउट ऑफ जितनी भी आपकी स्ट्रेंथ है. 100-200 बच्चे जितने आपके साथ कंपनी बैठ रहे हैं, उसमें से आप फिल्टर हो जाओगे. क्योंकि कंपनी जो इंटरव्यूअर है उसको पता है कि हाउ स्मार्ट यू आर, हाउ स्मार्ट योर माइंडसेट इज. यू डोंट ओनली फॉलो जो एग्जिस्टिंग है, यू वर्क विद योर ओन आइडियाज. आप खुद भी अपना दिमाग लगाते हो. जब आप खुद का दिमाग स्टार्ट करना चालू कर देते हो, जब आप जो रूल्स है उनको ब्रेक करना चालू कर देते हो, देन यू स्टार्ट थिंकिंग एज एन एंटरप्रेन्योर. आप एंटरप्रेन्योर जर्नी की स्टार्ट कर चुके हो जस्ट बाय चेंजिंग योर माइंडसेट. हम आधी चीजें तो हमारे सोफे पे ही खत्म कर देते हैं, यार ये क्या करना है इसको करके छोड़ो. हमारे आधे डिसीजन जो होते हैं ना, वो हम हमारे सोफे पे हटा देते हैं. इट्स ऑल अबाउट यू. चॉइस, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, चॉइस इज योर्स. जो यूनिकनेस आपके अंदर है ना, वो और किसी के अंदर नहीं है. ऐसा वी आर ऑलवेज सेड कि ऑल 5 फिंगर्स आर सेम. हमारे पास हर किसी की एक यूनिकनेस है. कोई अच्छा सोचता है, कोई अच्छा एग्जीक्यूट करता है, कोई अच्छा प्लान बनाता है, कोई अच्छे से चीजों को मैनेज करता है, कोई अच्छी चीजों को कनेक्ट करता है. सो एवरीवन इज डिफरेंट इन आवर ओन वे. हम इट्स नॉट अबाउट कि हम जॉब के लिए ही बने हैं या हम बिजनेस नहीं कर सकते. मुझे भी पहले से लगता था कि मैं खुद जॉब के लिए बना हूं, मैं इसीलिए एक्रोपोलिस कॉलेज गया था. पर रिजल्ट ये हुआ कि 4 साल बाद जब इंजीनियरिंग के प्लेसमेंट्स आए, मैं प्लेसमेंट में बैठा ही नहीं. इंजीनियरिंग खत्म होने से पहले मैं अपनी खुद की कंपनी स्टैब्लिश कर चुका था, बिकॉज आई थॉट दैट वे. मेरे 240 बच्चों की स्ट्रेंथ थी मेरे कॉलेज में, और 240 के 40
पूरे 4 साल इंजीनियरिंग में यही सोचते थे कि हमारा प्लेसमेंट कैसे होगा, हम कैसे अच्छी कंपनी में हायर होंगे, राइट? जबकि मेरे पास ऑलरेडी 2 कंपनियों से ऑफर्स थे, आई डिड नॉट टेक इट। और उस टाइम जितने बच्चों को जो कॉलेज में प्लेसमेंट्स ऑफर आए थे 5 LPA 3 LPA, उससे ज्यादा का मेरे पास ऑफर था, बट आई स्टिल वॉकड आउट। अब एक ये चीज होती है, इट इज ऑलवेज सेड कि रिस्क लेने में काफी बड़ा करेज चाहिए रिस्क लेने के लिए, बट जैसे हमने हर्षद मेहता ने बताया, हमें रिस्क है तो इश्क है, राइट? हमें अगर इफ यू हैव द कैपेबिलिटी टू टेक रिस्क, देन यू शुड टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क। भाई पानी में कूदना तो पड़ेगा ही, अगर आपको पानी की गहराई जानना है, पानी में कूदना तो है ही, बट यू हैव टू डिसाइड कि आपको 3 फीट पे कूदना है, 5 फीट पे कूदना है या 10 फीट पे कूदना है, राइट? पानी में कूदने से ही हमें मालूम पड़ेगा कि पानी में हम में कितनी कैपेबिलिटीज हैं। 2 बातें होंगी, आइदर विल वॉक अवे, आइदर विल स्विम एंड वॉक अवे आउट, और विल फ्लो डाउन। तो वी हैव टू मेक डिसीजन, इट्स ऑलवेज योर चॉइस कि आपको क्या डिसीजन लेना है, राइट? आज इस सेशन के बाद आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू कि अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करो, अपने आसपास की जो प्रॉब्लम्स आप डेली ट्रैवल कर रहे हो, आपके कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज में फैकल्टी से बात कर रहे हो, कॉलेज में आफ्टर योर लेक्चर यू शुड आइडेंटिफाई कि भाई क्या प्रॉब्लम है, जो चीज अभी तक चल रही है, जो रूल्स अभी तक चल रहे हैं, जो लास्ट 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के हमारे इंडिया में कंट्री में जो चीज हुई है, उनमें क्या डिफरेंस था, हमने क्या चीजें बदल सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट यू। अगर आप अपने प्लेसमेंट से पहले एक आइडिया सोच सकते हो, उसको बना सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो, तो इट वुड बी एंड mindset changing opportunity for you. You can convince your interviewer, right? I hope मैंने काफी बातें जो है आप लोगों को बता दी हैं। काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि बहुत सारा ज्ञान हमें मिल चुका है, बट इट कैन मेक अ डिफरेंस अगर आप थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज करो तो, राइट? कि अगर आप किसी के भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी किसी को अगर पूछना हो, तो यू कैन आस्क मी, you can catch me on any of the social media. I'm available everywhere, Instagram, Facebook, Twitter, जहां पे आप मिल रहे हो। अगर आप आज की स्टोरी बना रहे हो, you can tag me at @Aman Purwal, right? So yeah, is there any question? I'm up for questions. Pankaj, Anshita, Aman Khan, अगर आपके कोई questions है तो you can surely ask me. Students, you can ask the question one by one because we have not so much time. We have only 10 minutes because और अगर ऐसा होता है तो we'll rejoin the meeting as well. In that case होता है, लेकिन just give the quick questions to ask quick question. Sure. अंशिता, मैंने एक चीज बताई थी कि सर दुबई एक्सपो भी होके आए थे, तो if you have a question regarding this कि उनका कैसा क्या रहा experience वहाँ पर, so you can ask with him. Yes, ma'am. Actually, I'm asking the same question. Sir, what was the experience about that journey about yourself? यार What is the difference between? देखो, दुबई का नाम सुनते ही ना हमारे माइंड में आ जाती है लग्जरियस बिल्डिंग, बुर्ज खलीफा, एंड दुबई बहुत आगे, बहुत। हम इंडिया में बैठ के ना 7 रुपए की चाय में सेटिस्फाई हो जाते हैं, दुबई में 700 रुपए की चाय मिलती है। सो हमको ये देखना है कि हम जब भी ये सोचने लगते हैं ना कि भाई हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, एक अच्छी जॉब हमें मिल गई है और हम बहुत मतलब स्टेबल हो गए हैं, भाई अब तो लाइफ सेट है, हमें जॉब मिल गई है, अब हमें क्या करना है, तो दैट वी हैव टू चेंज। दुबई हमसे बहुत आगे है। मेरे पास दुबई अपॉर्चुनिटी तीसरी बार में आई थी, शुरू के 2 बार में रिजेक्ट हो चुका था। एक बार में रिजेक्ट हुआ था, दूसरी बार मैं खुद ने मना कर दिया था क्योंकि काफी एक्सपेंसिव था। तीसरी बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद आगे से मेल भेजा कि यू कम टू दुबई एक्सपो, फुल ट्रिप वाज स्पॉन्सर्ड, रहना खाना एवरीथिंग वाज पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रेजेंट द विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत। तो जब आप बड़ा सोचने लगते हो ना, तब अपॉर्चुनिटीज आपके पास जरूर आती है, सही टाइम पे आती है। So keep on thinking, keep on learning, right? Yeah, sir. Yeah. Sir, can I ask one more question? Sure. जल्दी पूछो। Sir, actually, I want to ask why you start with this. आपका आवाज नहीं आ रही अंशिता, you're not audible. Yeah, Ravi, you can ask. Later we can take the questions later on also. You can reach me out on Instagram, LinkedIn, Twitter. कहीं भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो. I'll be happily replying you. We will start a new session as well in the next few weeks or a few months as well. We will again sure.
just give a session. Aman sir definitely will take a session again. We'll connect with him. So Ravi Shankar, you want to ask something? So just kindly you can ask, please. Yeah, Ravi, you can go ahead. Ravi, you are not audible. Ravi, chat box में डाल सकते हो आप अपनी question. Yeah, you can. You guys can put your questions in chat box. जिसके questions हैं आप chat box में लिख सकते हो. It's okay. We have only 6 minutes left, guys. Hello, sir. जी, बताइए. सर एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रही थी सर, आपने जब ये कॉन्सेप्ट शुरू किया तो आपके माइंड में क्या स्टेट था कि मेरे को ये कॉन्सेप्ट के साथ वर्क करना है, तो कुछ तो सोचा होगा? बस यही माइंडसेट था कि कुछ बड़ा करना है, कुछ चेंज लाना है. सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना है, केवल एक जॉब लेके सेटिस्फाई नहीं करना है. हमें प्रॉफिट्स की बात करना है, हमें बिजनेस माइंडसेट से सोचना है, हमें वो चीज करना है जिससे लोगों की लाइफ आसान हो, जिससे लोग हमें याद रखें. आप एक कंपनी में जॉब करते हो, कंपनी में जिस दिन आप जॉब छोड़ते हो कंपनी आपको भूल जाएगी. लेकिन जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो, जब आप 10 लोगों से बात करते हो, 100 लोगों का एक नेटवर्क बनाते हो, तो वो 100 लोग आपकी बातें 1000 लोगों से करते हैं, राइट? जब आपका नाम, आपके बारे में चर्चा होती है, जब लोग आपके बारे में काफी लोगों से बातें करते हैं. सो दैट्स व्हाट द थिंग वाज कि मैं कैसे इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, कैसे लोग मुझे पहचान सकते हैं, कैसे हम एक पहचान बना सकते हैं. जब आप जॉब करते हो, जब सिर्फ केवल पैसा बनाते हो, जब आप एक बिजनेस बनाते हो, जब एक स्टार्टअप बिल्ड करते हो, तब आप इंस्टेड ऑफ मेकिंग मनी इज द सेकंड थिंग. जितना आप पैसा अपनी लाइफ में जॉब में नहीं बना सकते हो ना, उतना आप एक बिजनेस में बना सकते हो, राइट? Sir, how we start a good entrepreneurship in a great things and change human being. Shishir, how we can start entrepreneurship? So इसका कोई फॉर्मूला नहीं कि आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, ऐसी कोई स्टार्ट लाइन नहीं है. आप अभी से इस सेशन के बाद से entrepreneurship के बारे में स्टार्ट कर सकते हो. आप YouTube पे सेशंस देख सकते हो, आप चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हो कि भाई अभी तक जो चीजें हो रही है वो किस तरीके से हो रही थी, क्या उनने प्रोसेस किया, आप उनको कैसे चेंज कर सकते हो, क्या उनमें बदलाव आप ला सकते हो. So there is no formula to start, but it's all about your choice कि आप कैसे डिसीजन ले सकते हो. It's all about you. Choice is always yours. कि आप कैसे चीजों को बदल सकते हो. आपका it's all about your mindset. Entrepreneurship starts with a mindset, right? आपने अगर अपने माइंड में बदलाव लिया है ना, तो आप हर जगह बदलाव ला सकते हो. Yeah. Any other questions? I hope now we don't have so much time. We have some shortage of time, that's why. So now I would like to request our HOD sir, so kindly just give 1 minute your time so that we can proceed for thank you speech as well. Sir, please. Thank you, Mayor. It was a wonderful lecture by Aman. Aman, basically, I am also part of this Innovation Council cell, and I'm also working on entrepreneurship. I have taught the entrepreneurship, and a lot of business plans are being made. I think you must have heard the name of business canvas model, because yes, sir, business canvas model which is there. Yes. So yes. I have seen this mom's card also. Basically, so you are doing a wonderful job because you are providing a lot of job to many persons. So yes, from the concept I to we, it is a very good concept, because team. If the team is good, then only we can win the award. If our team is not good, so you have taken a very good path. So very best wishes from my Oriental University to you as all the students also. Whatever Aman has said, I think everybody should follow that, because now this is a time when a lot of opportunities are there for the young minds. And thank you very much, Aman. You have for your sparing your precious time. And basically, I would like that again you take another lecture, so that some of the students who could not join one or the other reason today, and I would like that we will invite you in our university also, so that you can take a long session, and you can share your journey and you can share your experience also with the students. So thank you very much again, all the students who have joined today. I think you must have gained something today. So again, we will call Aman. So thank you very much, because shortage of time is there. There is a time limit. Thank you very much, Aman. Yeah. Thank you so much, sir. Thank you so much for calling me. I will keep on inspiring upcoming students and helping you out. You guys can catch me out on social media
on Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram. आप कहीं भी मुझे reach out कर सकते हो. @IAmanPurwal, @momscart. Thank you so much for everyone for inviting me. If you guys can quickly available for a quick screenshot or a selfie, you can turn on your camera and we can click a screenshot. We had taken. All right. And thank you so much, Dean Management ma'am, for being here and show your valuable presence. Dean from Pharmacy Department as well. And HODs from different respective departments, other faculty members and beloved student, research cell as well. And from ISC Institute, ISC Council members from Oriental University. Thank you so much for being here with this wonderful session and make this session so much interactive. Thanks a lot. And thank you so much, last but not least, Mr. Aman Porwal. And we will catch up on social as well. Thank you so much, Dean Management, ma'am. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you, Aman Porwal ji. Thank you. Thank you so much, ma'am. And thank you, Pro VC sir, for being here. Thanks a lot. Thank you so much, sir. I am really feeling obliged that you are just here to give us so much motivation. Thanks a lot. Now we can end this session. Thank you. Thank you so much, guys. Bye. All the best. Thank you. Thank you.